हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में अपने एरे की जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्रीफिक्स सम एंड कैडेंस एल्गोरिथम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's see what the problem statement is saying. So here the problem statement is given an integer array nums, find the subarray with the largest sum and then return its sum. So the question is very simple, that you are given an integer array nums and you have to find a subarray. Subarray means the continuous piece or part of the array which has the largest sum, and we just not need to find that subarray, we also have to return the sum of that subarray. So I hope question clear हो चुका होगा. So let's discuss the brute force approach. So अगर हम brute force approach की बात करें, so एक क्वेश्चन देख के जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि what we will do, we will compute the sum of all the subarrays and then we will return the maximum value. So simple thing, we will compute sum of all subarrays and then they will return the max of all the sums. So जितने भी क्यूमुलेटिव सम्स हमारे पास आएंगे उन सारे सम्स का मैक्सिमम हम रिटर्न कर देंगे. दैट इज ऑल ब्रूट फोर्स. सो लेट्स कोड इट. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक नम ले लिया है vector and I have taken the same input which was there on the whiteboard and now I am starting the coding the brute force approach. So पहले तो कॉर्नर केस की बात कर लेते हैं कि अगर nums का साइज 0 है, in that case we have to return the value 0. तो उसका तो पहले क्लियर ही कर देते हैं, अलग ही रख लेते हैं. That just suppose I am defining a equals to nums dot size. सो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको इम्प्लीमेंट किया. हाउ इम्प्लीमेंटेड, आई हैव क्रिएटेड ए इंटीजर कॉल्ड मैक्सम एंड आई इनिशियलाइज इट विथ इंट मिन, मतलब कि इंटीजर का मिनिमम वैल्यू. एंड व्हाट आई डिड कि मैंने दो लूप चलाया है. द फर्स्ट वन विल से कि हमारा सब एरे कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, द सेकेंड वन विल से कि हमारा सब एरे कहाँ पे एंड हो रहा है. एंड फॉर ऑल द सब एरे के वेरिएबल है विच विल आइटरेट फ्रॉम आई टू जे, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, एंड विल क्यूमुलेट द सम and then the maximum sum will be stored in the max sum and then we will return it. So I am running the program. So it was already expected, it was already given here, so I am just removing it then running the program. So you can see the output is 6. it means it is expected and जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से मैक्सिमम कैलकुलेट हो चुका है. क्लियर है? बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट वी डिड यूजिंग दिस ब्रूट फोर्स इज ऑर्डर ऑफ एन क्यू. ठीक है. सो अगर आप इसको सबमिट करने का कोशिश करोगे तो इट विल गिव यू दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड. सो आई जस्ट पुटिंग इट ऑर्डर ऑफ NQ. नाउ लेट्स सी दैट we want to, let's say we want to submit it on LeetCode. So let's submit it. Let's see what will happen. So I am submitting it on LeetCode. So let's run the program first. Okay, let's submit it. So here you can see that 200 test cases out of 210 टेस्ट केसेस पास, मतलब कि हमारा 10 टेस्ट केस फेल कर रहा है. क्यों फेल कर रहा है? क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीड हो चुका है. ठीक है. नाउ हाउ वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी कैन सिंपली लाइक यू कैन सिंपली थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन थ्रू विच वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एटलीस्ट दिस पार्ट. So you can do it easily without using any extra space, but as I have to introduce the prefix sum concept so that we can use it in further videos, so I am introducing a prefix sum concept here and I will be using that prefix sum array to get the sum of
वैल्यूज फ्रॉम ith इंडेक्स टू jth इंडेक्स इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम. ठीक है. So simply, what is the prefix sum? So prefix sum is simply array which will store the sum of all the element, like prefix of I will represent the sum of all the element from 0th index to ith index. That's it. So I am defining a prefix sum and building it. So जैसा कि मैंने बताया कि prefix sum will contain all the sum of all the values from 0 to I. तो जैसा कि मैंने बताया prefix sum of I will contain the sum of all the values from 0th index to ith index. Similar thing I implemented here. So sum is representing the sum of cumulative sum of all the values from 0th till I, and that I am storing in prefix sum. That's all. So स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लेके आपको ये जो क्यूरी है ऑर्डर ऑफ वन में परफॉर्म कर सकते हो. दैट व्हाट विल बी द सम ऑफ ith इंडेक्स टू jth इंडेक्स. ठीक है, सिंपल, क्लियर. सो लेट्स डू इट. हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस इट हेयर. सो इट विल बी नाइस कि सम हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया है तो यहाँ पे करेंट सम डिफाइन कर ले. So let's say current sum or subset sum. So I am saying subset sum. तो what will be the subset sum? तो अगर आपको I से लेके J तक के सारे एलिमेंट का सम चाहिए तो how you can do it? So let's come on the whiteboard and see कि कैसे कर सकते हैं. तो suppose that हमारा एक array दिया गया है that is 1 2 3 4 and 5. सिंपल समझते हैं अभी के लिए. ठीक है, माइनस एंड ऑल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं अभी के लिए, सिंपल समझते हैं. तो हमारा प्रीफिक्स सम क्या होगा? 1 3 6 10 एंड 15. नाउ लेट्स सपोज कि आपको फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट इंडेक्स से लेके सेकेंड थर्ड इंडेक्स तक का वैल्यू चाहिए. द फर्स्ट वन इज 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स. सो आपको पता करना है कि फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक का सम क्या होगा. सो हाउ यू कैन डू इट. ठीक है, सिंपली आते हैं हमारे प्रीफिक्स सम वाले में. सो वी नीड टू फाइंड कि इसका सम क्या होगा. सो वी कैन सिंपली डू इट थ्रो कि अगर मेरे को इसका सम पता चल जाए कि 0 से लेके j तक का सम क्या है, 0 से लेके i-1 तक का सम क्या है. सो दिस इज i-1, राइट, एंड दिस इज j. तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, प्रीफिक्स सम ऑफ j में से माइनस कर देंगे प्रीफिक्स सम ऑफ i-1 simply to get the sum of all the element from I to j. So हमने क्या किया कि j तक के सारे एलिमेंट ले लिए और i-1 तक के सारे एलिमेंट को उसमें से हटा दिया ताकि i से लेके j तक के सारे एलिमेंट का सम हमको मिल जाए. ठीक है, सिंपली. बट व्हाट इफ अगर आपको मैं बोलूँ कि मेरे को 1 से लेके 3 तक का सम चाहिए. सो व्हाट यू विल डू, यू विल चेक कि 0 से लेके j मतलब j तक का क्या है, एंड देन यू विल ट्राई टू रिड्यूस द प्रीफिक्स सम i-1. बट क्योंकि 0 से स्टार्ट है तो i-1 विल नॉट, इट विल गिव यू -1 इंडेक्स जो कि आउट ऑफ बाउंड है. सो इन दैट केस प्रीफिक्स सम ऑफ j विल बी सफिशियंट फॉर गिविंग द आंसर. नो नीड टू रिड्यूस एनीथिंग, नो नीड टू रिमूव एनीथिंग. सो आई होप क्लियर हो चुका होगा. ओनली एज केस ये है कि जब i 0 होगा, इन दैट केस देयर इज नो नीड टू रिमूव प्रीफिक्स सम ऑफ i-1. सो दैट्स ऑल अबाउट प्रीफिक्स सम. और देखते हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन. तो सबसेट सम विल बी प्रीफिक्स सम ऑफ j. सेम थिंग आई एम डूइंग कि अगर i का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ तभी हम लोग सबसेट सम में से घटा देंगे उस सबसेट को जो कि हमारा 0 से लेके i-1 तक है. So we will reduce prefix sum of i-1. ठीक है, so I'm removing it. Let's run the program again. Again you can see the answer is 6 जो कि expected answer है हमारा. ठीक है, so let's again copy this code. So let's submit it. So after submission you can see कि now 203 टेस्ट केसेस पास. पहले कितना टेस्ट केस पास कर रहे थे?
200, अब 203 टेस्ट केसेस पास कर चुके हैं। इट मीन्स थोड़ा तो एफिशिएंट है ये सॉल्यूशन। सो लेट्स सी कि व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी पुट हियर। सो हियर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एंड पहले वाले में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं थी, बट क्योंकि हम लोगों ने अब एक एडिशनल वेक्टर बनाया है साइज n का, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अब हो चुका है ऑर्डर ऑफ n। सो बिना प्रीफिक्स सम के आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, तो इन दैट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 मेंटेन रह जाएगा। सो दैट इज देयर। Okay, if you further want to optimize the time complexity of this problem, now the cadence algorithm will come into the picture and help you to solve this problem in linear time. So let's see कि कैसे कर सकते हैं। Jump on the whiteboard. Okay, तो simple thing यहाँ पे हम बात करते हैं कि if there is something, okay, there is some value, like suppose let's not say something, there is some value x, and in that x if you will add y, and if y is greater than equal to 0, हमारे x में वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एटलीस्ट नॉन निगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो हमारे लिए बेनिफिशियल है y को रखना, ताकि x में ऐड होके वो हमारे वैल्यू को इंक्रीज करे। बट अगर ये y लेस देन 0 है, इन दैट केस y इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सब एरे। So you can understand the simple mathematics problem. So here the problem is x plus y. So I'm just saying that if y is greater than equal to 0, then we will have something like x will feel appreciated by value of y. But अगर y का value less than 0 है, in that case what will happen? x will decrease its value by whatever the negative value y contains. So सिंपल सा चीज़ है कि अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन वी शुड कीप इट सो दैट कि हमारे आगे आने वाले x में कंट्रीब्यूट कर सके, अदरवाइज लेट्स डंप द वैल्यू ऑफ y। इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे हमारा कैडेंस एल्गोरिथम काम करता है। सिंपल मैथमेटिक प्रॉब्लम दैट इफ x प्लस वाई इज देयर एंड अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इन दैट केस इट विल कंट्रीब्यूट टू द वैल्यू ऑफ x, otherwise it will not going to contribute. So let's drop the value of y. Pretty much simple. Now I will try to traverse this array and I will try to run that the same concept, and I will try to find the maximum value of this subarray sum. So I am doing -1, 1, -3. So what I am doing, I am maintaining a current sum variable. Initially it is 0. So I am maintaining a current sum variable and then I am maintaining a max sum variable. So initially it is -infinity. ठीक है। So let's run the program. So सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जब यहाँ पे पॉइंटर आएगा तो करंट सम विल बिकम -2। तो करंट सम जब -2 होगा तो हमारा मैक्स सम का वैल्यू, क्योंकि ये -इन्फिनिटी से ज़्यादा है, तो मैक्स सम विल बिकम -2। ठीक है। जब हमारा ओके, नाउ इज इट पॉजिटिव और निगेटिव? सो -2 इज निगेटिव, इट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द फ्यूचर, सो लेट्स ड्रॉप इट। नाउ लेट्स मेक अगेन द वैल्यू ऑफ करंट सम टू 0। जब ये आगे बढ़ेगा तो करंट सम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, एंड देन मैक्स सम का वैल्यू भी अपडेट हो गया, हमारा हो जाएगा 1। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर -3 की बात करते हैं तो -3 पे जब ये आएगा तो इसका करंट सम अब 1, क्या 1 को हमको ड्रॉप करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? नहीं, नो नीड टू ड्रॉप 1, क्योंकि 1 कैन कंट्रीब्यूट इन द फ्यूचर, सो इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू, सो नो नीड टू ड्रॉप इट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो -3 पे जब हम लोग जाएंगे तो क्यूमुलेटिव सब हमारा बन जाएगा -2। सो -2 इज इट ग्रेटर देन द मैक्स सम? नो, तो मैक्स सम का वैल्यू अपडेट नहीं होगा। सो अब -2 को शुड बी टेक इट फॉरवर्ड और नॉट? So the answer will be no, we should not take it forward because -2 is not going to contribute in the future. So I will drop it, again make the value of current sum to 0, and after moving forward the current sum again इसमें 4 + 4 हो जाएगा। So यहाँ पे again इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा वैल्यू हो चुका है 4, मैक्सिमम का वैल्यू है 1,
तो 4 इज ग्रेटर देन 1, तो आई एम मेकिंग इट 4। अगेन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, लेट्स टेक द डिफरेंट कलर। सो आगे बढ़ने के लिए अब फिर से -1 पे आते हैं, तो क्या -1 इसमें ऐड होकर 3 बनेगा। सो इज 3 ग्रेटर देन 4? नो, तो मैक्सिमम विल बी 4। नाउ अगेन मूव फॉरवर्ड, सो 3 + 2 इज 5, सो यहाँ पे 5 हो जाएगा एंड आवर मैक्सिमम विल गेट अपडेटेड टू 5। नाउ अगेन लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे हमारा जो सम का वैल्यू है वो 6 हो जाएगा एंड आवर मैक्सिमम विल आल्सो गेट अपडेटेड टू 6। अब आगे फिर से बढ़ते हैं -5, तो हमारे मैक्स करेंट सम का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड हमारे मैक्सिमम का वैल्यू चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 6। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हमारे करेंट सम का वैल्यू हो जाएगा 4 एंड हमारा मैक्सिमम का वैल्यू होगा 6 ही। एंड जब इस एरे को फुल रूप से आइटरेट कर लेंगे तब हमारा मैक्सिमम का वैल्यू 6 रहेगा, सो 6 विल बी रिटर्न्ड। सिंपल, क्लियर कि हमने एरे को बस एक बार आइटरेट किया और सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर x + y में y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, अदरवाइज लेट्स ड्रॉप द वैल्यू ऑफ y। तो करंट सम में हमने क्या किया कि अब तक का करंट सम स्टोर करके रखा और अगर करंट सम का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है देन टेक इट फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, अदरवाइज मार्क द वैल्यू ऑफ करंट सम अगेन टू 0। कोड कर लेते हैं इसको जल्दी से। सो लेट्स कोड इट, आई एम रिमूविंग दिस कोड्स। सो हियर यू कैन सी कि हाउ आई इम्प्लीमेंटेड द कोड। कि सबसे पहले तो सिंपल सा बात कि अगर nums डॉट साइज 0 है इट मीन्स कि वी कांट डिटरमाइन एनी सब एरे, तो लेट्स रिटर्न दी वैल्यू 0। आगे क्या किया मैंने, मैक्सिमम सम डिटरमाइन करने के लिए मैक्सिमम सम को इंट मिन से डिफाइन कर दिया है एंड करेंट सम को मैंने 0 से डिटरमाइन किया है। करेंट सम विल स्टोर दी करेंट सम, सो यहाँ पे आई एम कीप एडिंग दी वैल्यू आई विल रिप्रेजेंट दी वेक्टर ऑफ आई। And so here I have simply implemented the logic that I have we discussed on the whiteboard कि क्या करेंगे कि nums डॉट साइज अगर 0 है तो सिंपली रिटर्न 0 क्योंकि उसका कोई सब एरे होगा ही नहीं। अब मैक्सिमम को इनिशियली अगर डिटरमाइन करना तो -∞ से मैंने डिफाइन कर दिया है एंड करेंट सम को मैंने 0 कर दिया है। अब क्या है कि करेंट सम में हमारा नम का वैल्यू ऐड होता रहेगा जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था व्हाइट बोर्ड पे कि करेंट सम का वैल्यू ऐड होता रहेगा and maximum will keep updating its value depending upon the value of current sum। अगर current sum बड़ा हो जाता है maximum से तो maximum should update its value। The last part is कि अगर current sum less than 0 है in that case it will not going to contribute in the future sub array, so let's mark it again to 0। The same thing I implemented and then at the end let's return the maximum sum। so चलिए इसको सबमिट करते हैं वापस से। सो हम लोगों ने 2 ब्रूट फोर्स अप्रोच से सबमिट किया, सो लेट्स डू इट द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे। रनिंग द प्रोग्राम, दैट्स ऑल, टेस्ट केसेस पास्ड, लेट्स सबमिट इट। सो या दैट्स इट, हियर यू कैन सी द सॉल्यूशन गॉट एक्सेप्टेड। क्योंकि आपने जो नया सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ n and the space complexity of this solution is order of 1 because you are not using any additional space। कुछ constants ले रहे हो आप but that will contribute to order of 1 space complexity। That's all for today। मैं आशा करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में एरे के नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार।